Hello everyone, I am Deepak Purve. This video is for class 7th on subject mathematics chapter 7, that is linear equation in one variable of part 3. In this video, we discuss how to find solution of linear equation. Let's say any value of the variable which makes the equation a true statement is called the solution of the equation. यानी वेरिएबल का कोई भी वैल्यू जो उस इक्वेशन को एक ट्रू स्टेटमेंट बना दे, ठीक है, यानी वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाए फॉर दैट वैल्यू, then that value is called solution of the equation. Thus this means a particular value of variable when substituted in the equation for the variable and makes LHS is equal to RHS, then we say that the given equation is satisfied. That means यानी वेरिएबल का एक खास पर्टिकुलर वैल्यू, एक खास वैल्यू जब हम उस इक्वेशन में उस वेरिएबल की जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी उस वेरिएबल की जगह उस खास वैल्यू को रखते हैं, ठीक है, तो अगर एलएचएस बराबर आरएचएस हो जाता है, यानी एलएचएस में भी अगर एलएचएस में वेरिएबल है तो उस वेरिएबल की जगह उस वैल्यू को, खास वैल्यू को रखते हैं और उसी खास वैल्यू को आरएचएस में भी रखते हैं वेरिएबल की जगह, तो एलएचएस अगर आरएचएस के बराबर इक्वल हो जाए तो देन वी से दैट गिवन इक्वेशन इज सेटिस्फाइड फॉर दैट वैल्यू। तो उस वैल्यू के लिए वो इक्वेशन क्या हो गया, ट्रू हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। देन द particular value of the variable is called solution or root of the equation. Then particular value of the variable is called finally solution और root. सोल्यूशन को हम लोग रूट के रूप में भी हम अदर वर्ड्स में कह सकते हैं ऑफ द इक्वेशन. लेट्स सी some example. Let's an equation that is 3x plus 6 is equal to 15. This is a linear equation because here degree is 1 and highest power of variable is 1. So this is a linear equation in one variable. Why one variable? There is only one variable x is used in this equation. Now evaluate the LHS and RHS for some values of the variable x. यहाँ पे एक टेबल बना के देख लेते हैं. तो टेबल में यहाँ लिख देते हैं इक्वेशन, ठीक है. इक्वेशन क्या है? तो इक्वेशन है 3x plus 6 is equal to 15. अब यहाँ पे वेरिएबल x, ठीक है, इसकी हम लोग डिफरेंट वैल्यू रखेंगे, ठीक है, और LHS एंड RHS दोनों की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है. Now when we put the value of variable x is 1, then LHS is 3 multiply 1, x की जगह 1 पुट कर देंगे, प्लस 6 दैट इज 3 1 जा 3 प्लस 6 दैट इज 9. एंड RHS में क्या है? 15 है.
15 तो 15 ही रह गया, यहाँ x है ही नहीं। अगर x होता तो जैसे 15 प्लस x होता है तो 15 प्लस x की जो वैल्यू रखे हैं लेट किए हैं वो यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर LHS और RHS की वैल्यू इक्वल नहीं हुई, तो यह x की वैल्यू 1 ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। नाउ व्हेन वी पुट 2 the value of x 2, then we replace 3 multiply x is replaced by 2, add 6 is equal to 3 to the 6 plus 6 that is 12 and RHS is 15. In this case also LHS not equal to RHS. Now 3 the value of x is 3, then 3 multiply 3, here substitute the value of x, then we get 3 multiplied 3 plus 6 that is 9 plus 6 that is finally 15 and RHS is also 15. In this case we see that LHS is equal to RHS. Thus x is equal to 3 is the value for which LHS is equal to RHS. Such a value is called the solution of the equation. Now one question is that verify that x is equal to 41 by 6 is the solution of the equation x minus 2 whole 1 by 3 is equal to 4 whole 1 by 2। यानी वेरीफाई करना है कि x बराबर 41 by 6 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, ठीक है। तो वेरीफाई हम लोग कैसे करेंगे, तो x की वैल्यू हम लोग LHS और RHS में पुट करके देखेंगे, ठीक है। तो LHS का वैल्यू है x माइनस 2 होल 1 बाय 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू है 41 बाय 6 माइनस 3 to the 6 add 1 that is 7 by 3 which is equal to, यहाँ पर 6 LCM हो जाएगा, 41 minus 14 that is 27 by 6. Here 3 is the SCF of both, then we divide by 3 we get 9 and 2 that is 9 by 2 which is written as 4 whole 1 by 2 which is equal to RHS, ठीक है। अगर यहाँ डायरेक्ट RHS में यही वैल्यू है इसलिए इक्वल टू RHS कर दिया। अगर यहाँ पर भी वेरिएबल का यूज हुआ होता तो हम लोग RHS अलग से यहाँ पर उसकी वैल्यू फाइंड करते और फिर कंपेयर करते LHS और RHS इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। और LHS और RHS की दोनों की वैल्यू को फिर कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे LHS बराबर RHS हो गया, हेंस x is equal to 41 by 6 is the solution of the equation x minus 2 whole 1 by 3 is equal to 4 whole 1 by 2. Now one more question, यानी फिर से चेक करना है x बाई 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8 है। यहाँ पर चेक करना है क्या x बराबर 9 जो है इसका सोल्यूशन है या नहीं। तो यहाँ पर हम कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, ठीक है।
LHS क्या होगा, x/3 + 5, यहाँ पर होगा x की वैल्यू पुट कर देंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे तो 9/3 + 5 दैट इज यहाँ 3 और 9 का एलसीएम हो जाए, एचसीएफ हो जाएगा 3, 3 से इसको कटेंगे 1, इसको कट करेंगे तो फिर 3/1 दैट इज 3 + 5 दैट इज 8 and which is equal to RHS. Hence x is equal to 9 is the solution of given equation. ठीक है, तो हम लोग x की वैल्यू को LHS और RHS में दोनों जगह, दोनों साइड में हम लोग x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, x की वैल्यू रख करके और फिर हम LHS और RHS की वैल्यू कंपेयर करेंगे. अगर इक्वल हो गया LHS बराबर RHS तो वह वैल्यू उस इक्वेशन का सॉल्यूशन और रूट होगा. थैंक यू फॉर visiting this video. The next concept from this chapter will be continued in next video.